Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter Constitution Why and How, and under this chapter, we were doing the question and answers, which are the questions which are given at the end of your chapter, and we have done up to question number 5. And today we will start with question number 6. Now, your question number 6 is: why is it necessary for a country to have a clear demarcation of powers and responsibilities in the constitution? What would happen in the absence of such a demarcation? So, when we were discussing the functions of the constitution, one of the most important function of the constitution is to limit the powers of the government, and it is also the function of the constitution to demarcate the powers of all the organs of the government. Why this demarcation is done? This demarcation is done because in the absence of demarcation, first of all, what we face, what kind of problem we can face, there will be class and conflict. अगर जो पावर का डिमार्केशन है वो क्लियर कट नहीं होगा तो इन दैट सिचुएशन the there will be ambiguity, there will be lack of clarity, and this lack of clarity will lead to conflict and class among different organs of the country, organs of the government, and this will lead to instability and all kind of problems will arise, constitutional problem will arise. So this is very important कि the powers of all the organs of the government must be demarcated. There should not be any kind of ambiguity. Okay, तो पहला तो यही है कि स्मूथ फंक्शनिंग के लिए we need demarcation for smooth functioning of the government. We need demarcation of power so that there should not be any kind of clash or conflict between different organs of the government. So we can write down these points. Answer number 6. First point we can give for the smooth functioning of the government. For the smooth functioning of the government, there is need of demarcation of power. Then, in second point, to avoid confusion and to avoid conflict among and to avoid conflicts among different organs of the government. These are the points which you can elaborate when you are writing your answer. You must elaborate all these points. And other than these two points, the another most important reason for demarcation of power is to ensure that there should not be concentration of power. In order to control the concentration of power. Power should not be concentrated at one place. It must be divided, it must be distributed, and for that there is need to there is the function of the constitution ki it will demarcate the powers of the different organs of the government. Then
by demarcating the powers of the government, there is another reason for this demarcation. It stops misusing of power by any organ of the government. So these are the important points कि किस तरह से demarcation से हमें क्या फायदा होता है. Clear cut हो गया, everything is clear, there will not be any kind of confusion, and when confusion is not there, then conflict will also not be there. और स्मूथ फंक्शनिंग होगी, सबके रोल पते हैं, सबके रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स आर वेल डिफाइंड, तो सब कुछ स्मूथली चलेगा. देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कंसंट्रेशन ऑफ पावर रुकेगा, क्योंकि पावर सबके अलग अलग बताए गए हैं किसके क्या पावर है, कोई किसी दूसरे के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे. एंड इन दिस वे अब्यूज ऑफ पावर या मिसयूज ऑफ पावर भी नहीं होगा. तो डिमार्केशन का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है उसकी पावर एकदम प्रिस्क्राइब्ड है, लिमिटेड है, और जो पावर उसको दिया गया है उसे वही पावर यूज करना है. तो ये बहुत बड़ा चेक है ऑन दी पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है. तो इस तरह से हम देखेंगे इसमें, हम यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ योर कंट्री ऑल्सो कि किस तरह से आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ given the law making power to the legislature, then the execution of law, this power is given to the executive, and the judiciary is there to see that everything is going on properly or not, the law is being implemented or not. If someone is not following the law, then the person can be punished by the judiciary. So this is, in this way our constitution has demarcated the powers of all the different organs of the government. And then it is also given ki if the executive or legislature does anything, the legislature pass any law or the executive do anything which is against the constitution, then judiciary is there to stop that law. अगर कोई भी लॉ बन रहा है लेजिस्लेचर की तरफ से जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी उसको रोक सकता है, उसको इनवैलिड कह सकता है. कोई भी एक्ट जो एग्जीक्यूटिव ने किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी उसको इनवैलिड कह सकता है. तो इन दिस वे हमारी कंट्री में इसको लाया गया है. तो ये डिमार्केशन जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. एंड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि क्या होगा अगर इस तरह का डिमार्केशन नहीं होगा, तो व्हाट विल हैपन. तो अगर डिमार्केशन नहीं होगा तो हम क्या देखेंगे कि नथिंग विल वर्क प्रॉपरली, इंटरफेरेंस होने लगेगा. एक ऑर्गन विल स्टार्ट इंटरफेयरिंग इन द फंक्शन ऑफ द अनदर ऑर्गन, और ये इंटरफेरेंस से क्या होगा, इट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, और फंक्शनिंग जो है वो स्मूथली नहीं हो पाएगा. और जैसे हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया गया है वो अपना काम नहीं कर पाएंगे. जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली जो डिमार्केशन होना चाहिए, अगर वो डिमार्केशन नहीं हुआ है तो द गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू फंक्शन. फिर हमने फेडरल स्ट्रक्चर को भी अडॉप्ट किया है, तो अगर डिमार्केशन नहीं होगा तो फिर फेडरल स्ट्रक्चर भी बेकार हो जाएगी. तो एवरीथिंग विल बिकम मीनिंगलेस in the absence of demarcation of power. So demarcation of power is very much important. So this is your answer for question number 6. And now we will proceed to question number 7. It is, why is it necessary for a constitution to place limitations on the rulers? Can there be a constitution that give no power at all to the citizens? So this is another question ki why is it necessary for a constitution to place limitation on the rulers? अगर रूलर्स पे लिमिटेशन नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा कि they will turn autocratic. If we want democracy, if we want that the interest of the people should be given the most important place in the governance of the country, then in that case there is need to limit the powers of the government. There cannot be democracy
in the absence of this limitation on the powers of the democracy. So this is very important that the rulers must, their powers must be limited. Citizens are given some specified fundamental rights, and these fundamental rights are there to limit the powers of the ruler. The rulers have they are really powerful. They have so many powers, but they can exercise their power in accordance with the fundamental rights of the people. तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि डेमोक्रेसी जो है वो रियल बन सके, और डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि पीपल मस्ट बी एबल टू एंजॉय फ्रीडम, पीपल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली. So these are the fundamentals of democracy, and democracy cannot be possible without limiting the powers of the ruler. अगर रूलर के पावर को हम लिमिट नहीं कर रहे हैं तो वो ऑटोक्रेसी बनती जाएगी, है ना. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी. एंड अदर देन दिस we can say that there are times like national emergency, time of national emergency, or in the national interest, the whatever limitations are put on the powers of the rulers, that can be lifted. उस पीरियड में जब सपोज किसी तरह का नेशनल इमरजेंसी आ रहा है या किसी तरह का नेशनल इंटरेस्ट की बात जब होती है, तो उस कंडीशन में रूलर्स की जो पावर पे लिमिटेशंस लगे हुए हैं वो खत्म हो जाते हैं, जो राइट्स लोगों को मिले हुए हैं वो एंड हो जाता है उस समय. बट दैट इज ओनली फॉर एन एबनॉर्मल सिचुएशन. तो उस समय में उसको हटाना, दैट इज राइट, वो हटाया जा सकता है. बट in normal circumstances it is very much important that the rulers must have limited powers. okay, तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये हमारे नीड है कि क्यों हमें रूलर्स की पावर को लिमिट करने की नीड पड़ती है. इसके पॉइंट्स में अभी लिख रहे हैं. This is your answer number 7, and the question is ki what is the need to place limitations on the powers of the rulers. Democracy becomes real and meaningful. Democracy becomes real and meaningful if the powers of the rulers are limited. Okay, then we can write in the second point that in the absence of limitations in the absence of limitations on the powers of ruler, they may turn dictator or autocrat. So this is your most important point कि क्यों हमें पावर को लिमिट करने की नीड होती है. And then other than these 2 points, some other points can also be added, like by limiting the powers of the rulers, the citizens are given some fundamental rights.
which are very much important for the overall development of the personality of an individual. So for that also it is important कि रूलर्स के पावर को लिमिट किया जाए. And the people are given certain fundamental rights by the constitution people are given certain rights, fundamental rights by the constitution which are important, which are essential for the overall development of the personality of the people. Okay, so these are your points ki why we need to limit the powers of the rulers. And then we see there is a second part of the question also, and the second part is, can there be a constitution that gives no power at all to the citizens? So in answer to this question we will say no, there cannot be such constitution that gives no power to its people. कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बन रहा है तो उसमें लोगों के राइट्स का मेंशन होना जरूरी होता है. देयर मस्ट बी मेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री. हाँ, वही जो अभी बताया था कि कुछ ऐसे अबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, जैसे नेशनल इमरजेंसी की बात होती है कि नेशन के इंटरेस्ट में कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं जिसमें कि हम लोगों के राइट्स को छीन रहे हैं, या फिर हम कहते हैं कि जो रूलर है वो अनलिमिटेड पावर उस समय मिल जाता है उसको, बिकॉज सिचुएशन ऐसी होती है. जैसे कि पहले भी मैंने बताया है, आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, कि ये जो अभी पैंडमिक है हमारा कोविड-19, इसमें क्या हुआ, लॉकडाउन हुआ. लॉकडाउन में वी लॉस्ट आवर राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. हमारा बहुत सारी जो फ्रीडम थी वो हमारी ख़त्म हो गई, और हम उसके अगेंस्ट कुछ भी हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया. क्यों? क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट में दैट वाज इम्पॉर्टेंट टू कर्टेल दीज राइट्स ऑफ द पीपल. तो इस तरह के सिचुएशंस हो सकते हैं, एबनॉर्मल सिचुएशंस कैन बी देयर इन विच there is need to curtail the rights of the people, and there is need to enhance the powers of the rulers. But that is only abnormal situation. That cannot be a normal situation. हर समय में हम इस तरह की चीज़ नहीं possible है. That is not acceptable. तो कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा जिसमें कि लोगों के राइट्स की बात नहीं हो. ठीक है, राइट्स लोगों के होते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, बस कुछ एबनॉर्मल सिचुएशंस में उनके राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है. ओके, so now we come to our next question, question number 8, and this question is about regarding the Japanese constitution. The Japanese constitution was made when the US occupation army was still in control of Japan after its defeat in the Second World War. The Japanese constitution could not have had any provision that the US government did not like. Do you see any problem in this way of making the constitution? In which way was the Indian experience different from this? So the question is regarding the Japanese government, Japanese constitution. Japan was involved in the Second World War, and in the Second World War, Japan was
इन द एक्सिस पावर, दो दो ग्रुप था, है ना। अलाइड पावर्स एक तरफ थे, एक तरफ एक्सिस पावर थी। अलाइड पावर में ब्रिटेन था, फ्रांस था, यूएस था, ऑल दीज कंट्री, रसिया, ऑल दीज कंट्रीज वर इन द अलाइड पावर। और जो हमारा एक्सिस पावर था उसमें तीन कंट्री थे, जापान, जर्मनी एंड इटली। जर्मनी हिटलर वाली जर्मनी थी, इटली मुसोलिनी की थी, और जापान, ये तीनों ने साथ मिलके लड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसमें क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि यूएस, मतलब जो अलाइड पावर्स थे वो जीत गए थे। लास्ट होते होते ये समझ में आ गया था, हिटलर ने सरेंडर कर दिया था, और यूएस के लीडिंग वाली ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस वाली जो अलाइड पावर्स थे वो जीत चुके थे। और लास्ट में बिल्कुल 6 अगस्त 1945 एंड 9 अगस्त 1945 को जापान की दो जो सिटीज थी, हिरोशिमा पे 6 अगस्त को और नागासाकी पे 9 अगस्त को एटम बॉम्ब गिराया यूएस ने। तो इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि यूएस ने हालांकि गिराया तो ये दिखा के कि वो वॉर को एंड करना चाहता है। वॉर एंड करने के लिए ये एटम बॉम्ब गिराना जरूरी था। विदाउट दिस ड्रॉपिंग ऑफ एटम बॉम्ब द वॉर कैन नॉट बी स्टॉप्ड, बट एक्चुअली द मैटर वाज नॉट दैट। एक्चुअली मैटर ये था कि यूएस जो था वो अपने इन्फ्लुएंस को शो करना चाहता था कि वो कितना पावरफुल है, और खास करके एक एशियन कंट्री को उसने चुना, जापान को, बॉम्ब गिराने के लिए, क्योंकि जापान जो था वहाँ पर एशिया का एक कंट्री था, और एशिया में रसिया जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। हालांकि बोथ ऑफ देम, यूएस एंड रसिया, बोथ ऑफ देम वर इन द सेम ग्रुप, अलाइड ग्रुप नहीं थे, लेकिन इनके बीच ये जो एक राइवलरी थी दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द एंड ऑफ द, जैसे जैसे वो एंड की तरफ आ रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इनके बीच की राइवलरी जो है वो स्टार्ट होने लगी थी। तो एशिया में यूएसएसआर के पावर को कर्टेल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, अपना दबदबा दिखाने के लिए यूएस ने जापान पे बॉम्ब गिराया। और उसके बाद जापान जो है वो पूरी तरह से डिफीटेड हो गए, जो अलाइड एक्सिस पावर्स थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए। और फिर क्या हुआ कि जापान की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम वहाँ स्टार्ट होता है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ बन रही थी तो एट दैट टाइम व्हाट वी फाइंड कि यूएस की जो ऑक्यूपेशन आर्मी थी वो वहाँ पर तभी भी थी, और वो कंट्रोल की हुई थी जापान को। और उस सर्कमस्टांस में जापान का कॉन्स्टिट्यूशन बना, और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस रखे गए जापान के प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके साथ ये बात थी कि वो ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं रख सकते हैं जो कि यूएस गवर्नमेंट को एक्सेप्टेबल ना हो। ठीक है। तो दिस इन दिस वे जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये जो तरीका हम देख रहे हैं कि एक दूसरी कंट्री की आर्मी जो है वो वहाँ पड़ी हुई है, और न सिर्फ पड़ी हुई है, दैट इज इन कंट्रोल, दैट इज कंट्रोलिंग द सिचुएशन। और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग चल रहा है जापान का, उसमें किसी अदर कंट्री से आपको अप्रूवल लेना है। अगर यूएस नहीं कहेगी तो आप वो प्रोविजन नहीं रख सकते। ये क्यों ऐसा हुआ? क्यों हुआ वो तो मैंने बताया, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जिस तरह से एंड हुआ, जापान को जिस तरह से क्रश किया गया, देन जापान का कॉन्स्टिट्यूशन पे ये जो लगाया गया, इसमें हम सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम देख रहे हैं वो क्या प्रॉब्लम है, वो सॉवरेनिटी की प्रॉब्लम है। जो कि जैसे हमारी कंट्री, हमने देखा पंडित नेहरू ने जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को में अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा, अपना नहीं मतलब पूरी असेंबली का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा, उसमें जो फर्स्ट हमने पॉइंट दिया था उसमें क्या था कि इंडिया को एक सॉवरेन कंट्री कहा गया, है ना। तो सॉवरेन का मतलब, वी हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ सॉवरेन। सॉवरेन मींस अल्टीमेट अथॉरिटी, हमारे ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं है, हम सबसे ऊपर है ना। चाहे कोई कंट्री कितना भी रिच हो, कितना भी पावरफुल हो, वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकता है। दिस इज सॉवरेनिटी। यूएस बहुत पावरफुल है, आज के डेट में पावरफुल है। 1947 में जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ, 45 में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूएस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, सुपर पावर बन गया, बट स्टिल वी आर अ सॉवरेन कंट्री, एंड there cannot be any kind of interference in our matters from the US. We won't allow this. हमने इस चीज़ को अलाउ नहीं किया कि ब्रिटेन भी नहीं इंटरफेयर कर सकता है। ब्रिटेन के हम कॉलोनी थी,
बट ऐसा नहीं था कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसकी प्रोविजंस हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से रखना पड़ा। हम बिल्कुल फ्री थे, वी वर completely free, we behaved like a sovereign country. But in case of Japan, what we are seeing कि Japan was not behaving as a sovereign country, वो यूएस के हिसाब से काम कर रहा है। तो इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो हम ये कहेंगे कि this is not a type of constitution which is in accordance with the need of the people। लोगों के नीड को, लोगों के इंटरेस्ट को उसमें ध्यान ही नहीं रखा गया, वो तो अपने से एक सुपीरियर कंट्री के हिसाब से काम कर रहा है। तो ये जो चीज हम देख रहे हैं, इसका मतलब इसको इट वाज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पीपल। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये नहीं कि सिर्फ हम ये लिखा हुआ है, इट इज ओनली नॉट ओनली कि इट इज इन द रिटन फॉर्म, एक्चुअली जिस तरह से हमने कंपोजिशन देखा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जितना रिप्रेजेंटेटिव हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, उससे यही समझ में आता है कि सही में लोगों का पार्टिसिपेशन था। दो देर वॉज नॉट एडल्ट universal adult franchise was not there, still it was a highly representative body, हर इंटरेस्ट का वहां पर रिप्रेजेंटेटिव was there in the Constituent Assembly of India। लेकिन जापान को अगर हम देख रहे हैं तो जापान was only looking after the interest of the authorities who had occupied the country। तो it was not the making of the process of constitution making in Japan was completely different from the process of constitution making in India। that should not have been the process। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को हम कभी भी सही प्रोसेस नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें उनकी सॉवरेनिटी लैक होती है। ओके, सो हम यही कहेंगे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम with this kind of constitution making? The question is कि what is the problem with this type of making of the constitution? अगर इस तरह से constitution बन रहा है तो आपको उसमें क्या प्रॉब्लम नजर आ रहा है? प्रॉब्लम यही है कि there is compromise on the sovereignty of the country। This should be your first point। And the second point, the constitution was not representing the interest or ideals of the people। These are the problems which are associated with the constitution making process of Japan। And if we compare this process of constitution making with India, we see that our constituent assembly was a representative body, it was a sovereign authority। No one was there to dictate the members of the constituent assembly ki how to make a constitution and what provisions should be there in the constitution। Everything was decided according to the desire of the people, according to the aspirations of the society। जो हमने पीछे से ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट हमने जो एस्पिरेशंस हमारे थे, उन एस्पिरेशंस को कॉन्क्रीट शेप दिया जा रहा था। हम किसी के हिसाब से नहीं काम कर रहे थे, हम लोगों के हिसाब से काम कर रहे थे, हम एक सॉवरेन कंट्री की तरह से काम कर रहे थे। तो दिस इज द डिफरेंस। ये यही हम लोग हमें डिफरेंस नज़र आता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस और जापान के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में। और अगर हम इसको कंपेयर करके हमें कहा जाए कि कौन सही था, तो ये इंडिया ही है जिसको हम सही कहेंगे,
क्योंकि हमने अपनी सॉवरेनिटी के हिसाब से काम किया, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्टेट. So this is all for today, and we will discuss other questions in the next class.